we are discussing it today, and then I'll be going further for the queries. So let me put my screen to the meeting. Let me share. Just give me a minute. Usaira is coming. Usaira, how much she has completed? Yes. So this is our tally for today. We are taking care of discount again. Now I could see Usaira over here, but I doubt how much she has completed. Usaira, can you tell me? Wait. Usaira, can you tell me how many days you have completed? Oh, yes. So, Usaira, can you tell me how much you have completed? Is there with this one? Why is this? Okay, chalo, pass. Now, do you have any doubt? Uh, Ma'am, I think you were supposed to send exercises. I didn't get them Yes, I didn't send. after 8. We Okay. didn't have net. Internet was not there, so Okay. we couldn't send. That was the problem. So now the thing is, and anyhow, that next exercise which I wanted to send was something new, so which you couldn't be able to solve. That is related to the bank book, so which I need to explain you now. Now, have you done this practically, Nikhil wala problem? No, I couldn't because electricity Uh, was gone the yes. whole day So yesterday. unless so it has to do it like this. Ki one will solve and then immediately you will do it practical. Then solve and practical. Both the things should go parallel. Okay. Okay. So now in this, while we are doing practical, Geeta had some problem. Like she was wondering how to do combine entry. So that first entry is receipt entry, then JV, that is single, normal entry. There should not be any problem. So this is where she is having problem. That is purchase, payment, purchase, and cash and discount receipt, right? So I am not having existing company. I am doing. I will do that. I will show you in any company. It should work for you, right? So I am going to tally. So I am opening the tally. This is my tally license version, and I have a folder. I think slash PD. Now you must be very familiar with this PD painter. Yes, so now I am taking any company, okay? Because I just want to show you that one particular voucher. So I am taking any company. So now the voucher over here, what I have is voucher what I have is payment, purchase account debited and cash and discount credit. So let's go to tally and then you check whether the ledgers are there. Ledgers and then alter. So purchase is there. Yes. Then cash has to be there and then discount is also there. Huh? Now what is it? Discount what? Received or given? Purchase means it is discount received. So I will change this. It is in ultra, so I will change this as discount received. This again I am making it clear. This I am doing it in any voucher. I am doing this in any voucher. Don't get confused. Don't get confused that I am doing it in. Don't get confused that what is this I am doing.
No need that you will be able to do the same thing, but you may need to do. If you have created only discount, it should not be with discount. Admit. क्या हुआ? हाँ, आ गया ना अभी? नहीं है? इसको दिख रहा है बराबर? But can you see the screen? I am showing you in Tally. Oh yeah, I can see the tally screen. Yes, Path could see Tally screen. वहाँ पे तुमको पिन करना पड़ेगा. हाँ, तो मुझे डिस्काउंट रिसीव्ड लेजर, पहले डिस्काउंट ही लेजर था, तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक. डिस्काउंट रिसीव करना पड़ेगा. ये बीच बीच में ना पिंग हो रहा है, तो क्यों आवाज आ रहा है? पार्थ पांड्यू, कैन यू मेक आउट? I can't hear anything. It's clear over here for me. बीच बीच में ना ऐसे पिंग, कोई कोई तो परमिशन पूछता है ना, इट्स दैट सॉर्ट ऑफ साउंड इज कमिंग, बट नो वन इज आस्किंग फॉर द परमिशन. अँड मी मोबाईलवर चालू ठेवलं ना फॉर दिस पर्पज, देन तो आवाजचा प्रॉब्लेम होतो. I don't know actually. मेरा वॉइस इज नॉट क्लियर. हाँ, फिर अभी वॉइस क्लियर है, देखो. नहीं है, आउट हो गई. So let's go to tally. Discount received इतना क्लियर हो गया. कैश है, परचेज है, डिस्काउंट रिसीव्ड. Now what I will do? I'll go to accounting voucher, and accounting voucher में मैं ये करूँगी. Now you tell me what is the date? Date क्या है? बुक में तुमने लिखा है 4th April है. So you tell me from there. So date is 4th April. हाँ? And then ये this is single entry format. सिंगल एंट्री फॉर्मेट है, तो जब भी सिंगल एंट्री फॉर्मेट तुमको दिखाई देगा, यू हैव टू मेक F12 एंड देन यूज सिंगल एंट्री. यू हैव टू मेक इट नो एंड डेबिट क्रेडिट यस. बोथ दिस एक्टिवेशन यू हैव टू डू. ओके, तो डेबिट किसको दिया है? परचेज. परचेज को डेबिट दिया है. सो परचेज अकाउंट डेबिटेड. अमाउंट बोलो कितना है? 18,000. नेम ऑफ आइटम कुछ भी देंगे, 18,000 है. बोलो उपेंद्र. परचेज लिखा हुआ देखो, परचेज 18,000 है. देन क्रेडिट दिया हमने कैश को, या पहले डिस्काउंट को क्रेडिट दे दो. डिस्काउंट रिसीव 900 रुपीज डिस्काउंट है, राइट? डिस्काउंट रिसीव एंड अगेन क्रेडिट दिया. बचा हुआ कैश को ऑटोमेटिकली आएगा. समझा बेटा? कैन यू सी द वाउचर ऑन द स्क्रीन? यस. So this is the way how you can make the combined entry. Okay? तो लिखते वक्त ये एंट्री है ना, तुम लोग जब भी डिस्काउंट कीमत आएगा तो मेरे सैलरी विड्रॉ करना पड़ेगा. बाकी सेल्स का अभी अभी मैं ऊपर कैश डालती थी और नीचे डिस्काउंट डालती थी, कुछ प्रॉब्लम नहीं था. ऐसे भी चलेगा. तुम लोग को क्रेडिट डालना है, 5-6 क्रेडिट है, कोई भी ऑर्डर चलेगा. हाँ हाँ, अमाउंट बराबर डालेगा. बात क्लियर? Yes ma'am. हाँ Yes. चलो, तो अभी ये निगेटिव कैश बता रहा है, क्योंकि ये मैंने कोई भी प्रॉब्लम लिया ना, ये मैंने कोई भी प्रॉब्लम लिया तो कैश है ही नहीं, तो मैं परचेज कहाँ से करूंगी? इसके लिए वो निगेटिव प्रॉब्लम, निगेटिव कैश बता रहा है. तो दिस इज ऑल्सो मीन्स यू डू द मिस्टेक, यू विल लर्न. So when you get this kind of error, when you don't have cash, and then if you are trying to spend it, naturally it has to give this error. Got it? So whenever you are getting negative cash error, means you don't have the cash and you are trying to spend. It is showing negative cash, means you have only 1,000 cash and you are spending 18,000. That's why it is giving you negative minus 17,000. Clear? Yes. Sure. तो मैंने उसको ऐसे ही पास कर दिया. अभी आगे था सेल, तो देखो हमारे पास सेल है क्या? हाँ सेल है. वो सेल का भी डबल एंट्री है ना, वो भी कर देते हैं. हाँ, तो सेल का वाउचर क्या रहेगा? रिसिट. तो मैंने रिसिट प्रेस किया. देन डेट. डेट क्या आएगा?
हाँ 6 अप्रैल, तो 6 अप्रैल जो डेट प्रॉब्लम में दिया है वही तुम लोग डेट डालोगे। देन रिसीट है क्रेडिट, तो क्रेडिट किसको, सेल को क्रेडिट, सेल हैज गॉट क्रेडिट बैलेंस। हाँ तो सेल्स को क्रेडिट, कैश को डेबिट आता है। तो रिसीट है मुझे पहले क्रेडिट पूछ रहा है, वो जो भी पूछ रहा है मुझे वही बोलना पड़ेगा, मैं वो फॉर्मेट चेंज नहीं कर सकती। हाँ तो रिसीट है तो क्रेडिट सेल को आएगा, अमाउंट बोलो 34,000 एंड देन क्या है, डिस्काउंट है तो वापस क्रेडिट, क्रेडिट है ना डिस्काउंट, डिस्काउंट डेबिट में सेल किया तो एक्सपेंसेस है बराबर, तो डेबिट, तो ये क्रेडिट मैंने डाला था ना वो देखो, तो उसको चेंज कर सकती हूँ मैं डेबिट, तो डेबिट कैश को डालो पहले, कितना कैश है 32,300। हाँ देन डिस्काउंट, हाँ अभी शायद डिस्काउंट नहीं होगा, देखो डिस्काउंट रिसीव्ड ही है, डिस्काउंट रिसीव्ड ही है, डिस्काउंट नहीं है, तो हाँ तो यहाँ पे भी तुम लोग क्रिएट कर सकते हो। और ए तो डेबिट डालने के बाद और सी यू कैन क्रिएट द लेजर, समझा। तो जरूरी नहीं कि मैं वाउचर से बाहर आऊँ, मैं अकाउंट इन्फो में जाऊँ, मैं लेजर में जाऊँ, क्रिएट में जाऊँ, समझ रहे हैं बात। Yes, Yes, ma'am. yes. So Yeah. it is not required that here also you can do Alt C is to create the ledger anywhere you can be, and Alt A is to add the voucher. So see how to memorize it. Create ledger, so Alt C. Add voucher, so Alt A. So it is I'm creating discount given. The discount given is sale है, हाँ so it is in the indirect expenses 1,700. Clear? Clear? Yes. Kata? So this is the way how you can make them. So I suppose you'll be able to do this problem. This problem you have to do it today. You have to complete it. Okay? Pass. याच्या आधीचा Yeah, प्रॉब्लेम okay. क्लिअर झालाय? हाँ झालाय? You have done it practically? 8 years. गीता संतोष इसके पहले का प्रॉब्लम क्लियर हुआ है? हाँ तो ये आज करके मैं अभी आप लोग को नया सिखा रही हूँ, वो भी आज वो कल करना है क्योंकि कल क्लास नहीं होगा, नाउ ऑनवर्ड द क्लास विल बी अल्टरनेट डे। हाँ तो नाउ द नेक्स्ट इज दिस बैंगो, बैंगो। ओके चलो ओपन करो, write a notebook, take out your notebook, write today's date, write the heading bango, and it is problem number 10. So now the name of the company is Bank Reconciliation. अभी बैंक रिकंसिलेशन क्या है मैं आपको बाद में बताऊँ। चलो लेट्स सी द नेक्स्ट, पेमेंट मेड। तो पेमेंट मेड के लिए वाउचर कौन सा आएगा, बोलो फटाफट अभी। पेमेंट, हाँ आगे कौन से दो लेजर है, कैश किधर है, पेमेंट मेड टू मिस्टर राहुल 15,000, डेट है 3rd अप्रैल, डेट में डेट लिखो तुम लोग, डेट कॉलम में डेट लिखो 3rd अप्रैल, थर्ड अप्रैल 12 है, 2012 है। हाँ। अभी और कौन से दो लेजर, और क्या क्या दिख रहा है तुम लोग को, राहुल चेक कैश है ही नहीं, वहां पे कैश किधर है, पेमेंट मेड टू राहुल, चेक
डेबिटेड टू बैंक HDFC। तो यहाँ पे कैश है ही नहीं, परचेज नहीं है, सेल नहीं है, क्या दिख रहा है? यू कैन सी ओनली राहुल एंड HDFC, only two ledgers you can see. Can you see anything else? Sir? No. Nothing is there. So two ledgers, which two ledgers are there? Two ledgers are clear. तो क्या करने का, जैसे तुम लोग को क्वेश्चन मिलेगा वो क्वेश्चन को पहले लेजर्स कौन से है वो तुम लोग फाइंड आउट करो ना। तुम लोग के साथ मैं भी सीख रही हूँ। देखो लेजर्स कौन से है, राहुल और HDFC, और कुछ है ही नहीं। ठीक है, अभी HDFC क्या है, बैंक है। तो पहले जैसे तुम लोग कैश चलाते थे वैसे अभी बैंक चलाओगे। तो HDFC बैंक पेमेंट किया मीन्स HDFC बैंक is going to increase or it is going to decrease? Decrease. Decrease. तो HDFC बैंक को क्या देंगे, क्या देंगे? बैंक बैलेंस डिक्रीज हो गया तो क्या देंगे? हाँ, डेबिट देंगे। चलाओ, बैंक इज एसेट, एसेट हैज गॉट डेबिट बैलेंस। अगर एसेट बढ़ती है तो अगेन यू हैव टू गिव डेबिट। तो अभी बैंक को हमने पेमेंट किया, राहुल को हमने पेमेंट किया, यानी राहुल को हमने चेक दिया। तो वो चेक देने के बाद बैलेंस बढ़ने वाला है क्या अपना? कम हो जाएगा ना। हाँ, तो इसके लिए बैंक को मैंने क्या दिया, क्रेडिट दिया। हाँ, अभी बैंक का ग्रुप क्या होगा? व्हाट विल बी द ग्रुप ऑफ द बैंक? Cash in bank. नो, हाँ, Current asset. बैंक अकाउंट। ग्रुप क्या होगा? बैंक अकाउंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये रॉन्ग आता है देन योर वाउचर समवेयर इट विल नॉट वर्क प्रॉपर्ली। क्लियर? चलो नेक्स्ट। हाँ, अभी नेक्स्ट क्या होता है? हाँ, नाउ डेबिट किसको देंगे? अभी बचा क्या है? राहुल। तो यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। अभी राहुल कौन है? अभी जब भी तुम लोग टैली में किसी का नाम देखोगे तो टैली यानी बिजनेस यानी अकाउंट्स में ना कोई भाई रहता है, ना कोई बहन रहती है, ना कोई चाचा रहता है, ना कोई मामा रहता है। बिजनेस में कोई चाचा मामा भाई बहन काली कुर्सी थी, काली व्हील वाली जो टैली में कोई भी रिलेटिव नहीं रहता। टैली में अगर किसी का नाम है तो सन्डी डेटर्स और सन्डी क्रेडिटर्स, बस दो ही रहेंगे। तो ये राहुल को हम पैसा दे रहे, तो वो अपना कौन है? Debtor. राहुल को हम पैसा दे रहे तो वो अपना डेटर नहीं हो सकता। हम पैसा उसको क्यों देंगे? क्योंकि हमने उसके पास से परचेज किया, इसके लिए हम उसको पैसा देंगे। तो जिसके पास से हम पैसे देते, जिसके पास से हम परचेज करते हैं, जब भी हमने परचेज किया तभी उसने हमको माल दिया, लेकिन तभी हमने उसको कैश दिया था क्या? No. हमने उसके पास से, राहुल के पास से परचेज किया। अभी यहाँ पे कुछ बोला नहीं है, परचेज फ्रॉम राहुल बोला है? नहीं बोला। तो वो कुछ बोला ही नहीं है, सीधा बोल रहे कि राहुल को हम पैसा दे रहे। तो राहुल को पैसा दे रहे इसका मतलब हमने पहले उसके पास से कुछ परचेज किया था, कुछ माल परचेज किया था, लेकिन तब भी हमने उसको कुछ पैसा पे नहीं किया था। इसके लिए अब भी पे कर रहे, बराबर है? तो राहुल ने हमको माल दिया, कैसे दिया? क्रेडिट पे माल दिया। राहुल ने हमको माल दिया, हमने उसको पैसा नहीं दिया, इसका मतलब राहुल ने हमको क्रेडिट दिया। तो फिर राहुल कौन है अभी? राहुल कौन है? बराबर है? राहुल ने हमको क्रेडिट पे माल दिया तो राहुल है सन्डी क्रेडिटर। क्या? तो अभी ये सेम तुम लोग कैश पे एंट्री करते थे। जब भी राहुल को अगर तुम कैश पे करते थे तो राहुल सन्डी क्रेडिटर ही होता था। उसको बोले तुम लोग कैश पे करो या बैंक पे करो,
सनरी क्रेडिटर ही होता था, और HDFC बैंक कैश के बदले वहां पे सिर्फ HDFC बैंक आया। क्लियर? यस पार्थ? Yes, clear. Yes. चलो नेक्स्ट। नाउ चेक रिसीव्ड। डेट देखो, अभी यहाँ पे देखो दो दो डेट्स मिला है, एक 3 अप्रैल भी है और एक 5 अप्रैल भी है। तो 5 अप्रैल को वो क्या बोल रहे हैं, चेक डेबिटेड ऑन 5 अप्रैल। यानी जब भी हम चेक देते हैं ना, तो हमने उसको चेक दिया 3 अप्रैल को, राहुल को चेक दिया। जरूरी नहीं है कि राहुल वो बैंक अकाउंट में डालेगा। हमने 3 अप्रैल को उसको चेक दिया, फिर वो 2 दिन क्या हो गया, उसके किसी में ही रह गया। फिर उसने बैंक, फिर उसको याद आया, अरे हमको चेक मिला है। फिर जाके देखा तो ये स्ट्रॉन्ग था या लॉकडाउन था या और कुछ बैंक हॉलीडे था, 4 दिन बैंक बंद था। फिर उसने डिपॉजिट किया, फिर वो क्लियर होने को 4 दिन लगेगा, समझा? तो चेक हमने दिया और चेक हमारे बैंक अकाउंट से क्लियर हो गया, इसमें बहुत डिफरेंस हो सकता है, डेट का बहुत डिफरेंस हो सकता है, 2-3 दिन का डिफरेंस तो होने ही वाला है। तो ये जो डेट दिया है ना 5 अप्रैल, उसका हमको बाद में कुछ करना है, अभी कुछ नहीं करेंगे हम, समझा? चलो आगे। तो अभी नेक्स्ट क्या है, चेक रिसीव्ड फ्रॉम शर्मा एंड कंपनी। अभी ये चेक रिसीव्ड है, डेट क्या है देखो, ऑन 7 अप्रैल। तो डेट में पहले आएगा 7 अप्रैल 12, फिर चेक रिसीव्ड है, तो व्हाट इज द टाइप ऑफ वाउचर, रिसीव। अभी तू संतोष थोड़ा जोर से बोलेगा, खाना वाना खाया है तू? अच्छा हट्टा कट्टा बच्चा है, तो आवाज आना चाहिए। रिसीव। तो नाउ दिस आर द 2 वाउचर्स। अभी कौन से वाउचर्स तुम देख रहे हो, वो मुझे पहले बताओ। अभी चेक है तो ये है, बैंक अकाउंट तो है ही है, और कौन सा अकाउंट दिख रहा है, शर्मा, बराबर है। तो पहले क्या दिख रहा है वो पहले देखने का, अभी पहले बैंक चलाओ। तो अभी संतोष बताएगा बैंक को हम क्या देंगे, डेबिट देंगे या क्रेडिट देंगे? क्यों? हाँ हाँ, बैंक इज एसेट, एसेट हैज गॉट डेबिट बैलेंस, बैंक काय झालं, फार तू लिहितोयस ना? Yes, I'm writing. हाँ, तो बैंक बैलेंस काय झाला, बैंक बैलेंस बढ़ गया, इसके लिए बैंक को क्या देंगे, डेबिट देंगे। तो HDFC बैंक को डेबिट देंगे, एंड देन क्रेडिट किसको देंगे, क्या बचा है अभी संतोष? शर्मा। Yes, you don't have any other option. हाँ मनीषा, हेलो, हाँ व्हिडिओ पाठवला का? हाँ मी तर बघून टाकते लगेच। हाँ ठेव ठेव, हो ठेव। इट इज शर्मा एंड कंपनी, और अमाउंट कितना डालेंगे, 25,000, बराबर है, डाला। अभी शर्मा को ग्रुप क्या रहेगा, शर्मा को ग्रुप क्या रहेगा, शर्मा को हम चेक दे रहे हैं, शर्मा से हमको चेक मिला, कंट्री डेटर, ऊपर जो हुआ बस उसके बराबर उल्टा हो रहा है, ऊपर जो हो रहा है उसके बराबर उल्टा हो रहा है, तो ये आएगा सैलरी डेटर। तो हमको पैसा देता है वो डेटर, और जिसको हम पैसा देते हैं वो क्रेडिटर। चलो अभी आगे के 2-3 एंट्री तुम लोग को दिख रहा है, वो तुम सॉल्व करो, मैं थोड़ा काम करती हूँ, तब तक 2 मिनट, अर्जेंट काम है।
Yes. Next. परचेज ऑफ स्टेशनरी आइटम्स, तो हमारा डेट क्या रहेगा? डेट डाला है वहां पे 10/4, 10/4, 10/4/12. हाँ, फिर व्हाट इज द टाइप ऑफ वाउचर? परचेज ऑफ स्टेशनरी, चलो गीता बोलो। हाँ, जोर से बोलो, क्योंकि पार्ट का आवाज सुनने के लिए मुझे दोनों कान में डालना पड़ता है, तो तुमको और जोर से बोलना पड़ेगा। पेमेंट। आगे अभी कौन से दो लेटर दिख रहे हैं तुमको? हाँ, HDFC बैंक। हाँ, और अभी तुमको यहाँ पे स्टेशनरी भी दिखता है, हाँ, और गुप्ता भी दिख रहा है, बराबर है। लेकिन जब भी किसी को पैसा दिया, गुप्ता को पैसा दिया, क्यों दिया? स्टेशनरी खरीदी क्या, इसके लिए दिया। फिर हमको रीजन पता चला ना, स्टेशनरी से गुप्ता इज इमटेरियल। हमने इधर पैसा लिया और इधर चेक दिया या इधर कैश दिया, तो बस नाम का नाम का कुछ मायना ही नहीं रखता। दैट नेम इज इमटेरियल, समझा? ऊपर कैसे था? ऊपर हमने उसको चेक दिया, लेकिन क्यों दिया उसका कुछ रीजन नहीं था, इसके लिए वहां पे हमको उसका नाम देना पड़े। यहाँ पे द रीजन इज देयर, सो स्टेशनरी आएगा, गुप्ता नहीं है। क्लियर संतोष? तो अभी डेबिट किसको देंगे बोलो? चलो अभी पहले बैंक चला, कैश किया बैंक पहले चलाने का, कैश आएंगे तो बैंक चलाओ। तो बैंक कम हो गया या बढ़ गया? हाँ, बैंक बढ़ गया। पेमेंट किया तो बढ़ गया, पेमेंट किया तो बैंक क्या हो गया? पेमेंट किया तो बैंक कम हो गया, तो बैंक को क्या देंगे? क्रेडिट देंगे। तो HDFC बैंक, HDFC बैंक। फिर डेबिट किसको देंगे? स्टेशनरी को देंगे। तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिटेड। अभी स्टेशनरी का ग्रुप मालूम है, आई डिड नॉट टेल यू एवरीथिंग नाउ। हाँ, अभी तुम लोग कुछ हद तक तो एक्सपर्ट हो गए इन क्रिएटिंग द लेजर्स। स्टेशनरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, अमाउंट कितना है? 10,000। नेक्स्ट, चलो संतोष, अगली लाइन। डेट क्या है? जोर से बोलो। हाँ, 15 अप्रैल। कौन से दो लेजर दिख रहे हैं तुमको? हाँ, MSCB और बैंक। हाँ, चलो पहले बैंक चला, पहले वाउचर बोलो, पहले वाउचर बोलो। हाँ, पेमेंट, वेरी गुड। फिर आगे, हाँ, हाँ, अमाउंट इज पेड, दैट्स व्हाई, हाँ, दैट्स व्हाई डिक्रीज। हाँ, तो लेस, तो क्या देंगे? डेबिट, क्रेडिट। हाँ, इसके लिए तुम जोर से बोलो, मैं बोल रही हूँ, मुझे ऊंचा सुनाई देता है। तो क्रेडिट, तो बैंक आएगा क्रेडिट, तो HDFC बैंक में क्रेडिट आएगा। अभी डेबिट किसको आएगा? हाँ, MSCB का ग्रुप क्या रहेगा? MSCB कौन है? MSCB हमको चाय देती है क्या? क्या देती है? इलेक्ट्रिसिटी देती है। तो क्या आएगा ग्रुप? यहाँ पे बोला है फैक्ट्री का है या ऑफिस का है, कुछ बोला है नहीं, तो इट इज अज्यूम्ड एज द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अभी आगे का मैं नहीं सॉल्व कर देगा। अभी आगे का देखो क्या है तुम लोग को? पेमेंट पेड, फिर अमाउंट पेड, फिर पेड फॉर ट्रांसपोर्ट, फिर चेक रिसीव्ड, फिर रेंट पेड, फिर सैलरी पेड। दिख रहा है सब कुछ? बस खत्म। हाँ, तो तुम
तुम लोग को अभी ऑलरेडी पेमेंट मालूम है, यू हैव डन ऑल पेमेंट्स एज अ कैश टिल नाउ, ओनली इंस्टेड ऑफ कैश इट विल बी बैंक ओवर हियर नाउ, बराबर है, बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो अब भी तुम लोग अभी के अभी ये लिखोगे, इसको तुम अभी के अभी लिखोगे, पास में तुमको फॉरवर्ड कर रहे हो। अभी यहाँ पे कुछ डाउट है तुमको? नहीं, हाँ, नो नो डाउट डाउट्स, है नहीं ना? हाँ, नहीं। डाउट नहीं है। तो ये मैं अभी तुमको असाइनमेंट डाल रही हूँ, शायद इसके बाद का भी असाइनमेंट रहेगा, तो तुमको मैं 2 असाइनमेंट सेम रहेगा तो डाल देती हूँ। अभी इसको प्रैक्टिकली करने में तुम लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, आएगा? हाँ, बात नहीं, बात आएगा क्या? नहीं आएगा, इट्स क्लियर। हेलो, अरे आवाज तो हाँ, ठीक है। तो अभी मैं इसका असाइनमेंट तुमको फॉरवर्ड करती हूँ। अभी के अभी तुम ये आज एक सॉल्व करोगे, एक प्रैक्टिकल करोगे लाइट आने के बाद। हाँ, चलो संतोष जी सामने देख के तुम सॉल्व करो। हाँ, नहीं उसके पास लाइट नहीं है, पास के पास लाइट नहीं है। अभी मैं यहाँ पे मीटिंग है, स्टॉप शेयरिंग कर देती हूँ। हाँ, चलो बाय बाय, सी यू, यू टू सॉल्व इट Bye. टुडे ओनली, Yes. बाय।